Good morning, everyone. We have started with the new chapter in the previous lecture, that is accounting for incomplete accounts, incomplete records, or you can call it single entry. You have done single entry in your 12th standard, but this is the advanced version where we will be preparing final accounts based on the incomplete records. We will prepare final account, that is trading account, profit and loss account, and balance sheet with the information given. And for that purpose, we have to prepare some other accounts which will help us to prepare final accounts. That is, we will be preparing debtor account, creditor account, bills receivable account, bills payable account, कैश बैंक अकाउंट. सो ये सब छोटे छोटे अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते रहेंगे so that we are able to complete our final accounts, that is trading account, profit and loss account, and balance sheet. Our main focus is to prepare the final accounts. So today's lecture, I will show you how to prepare debtor account, and bills receivable account, and creditor account, and bills payable account. So these 4 accounts I will explain you today, and please pay attention here. I want your complete attention here. ये अगर आप समझ गए ना तो आपको ये चैप्टर समझने में बहुत इजी होगा. तो ये आपको आना चाहिए. So इसलिए what I will do is I will adjust the table. Particulars, rupees, particulars, rupees. So the same copy here also, and here also. So this is the format. We are ready with the format. So here, debtor account, bill receivable account, creditor account, bills payable account. So let us start first with debtor account. Debtor is tell me, debtor is a asset or a liability? First tell me, debtor क्या है? Asset है या liability है? What is debtor? Debtor is a asset. Correct answer. Debtor is a asset. Debtor is a asset, and asset has a debit balance. Asset को कौन सा balance होता है? Debit balance होता है. So हम लोग हमारा balance लिखेंगे to balance brought down. Debtor is a asset, and asset has a debit balance. To balance brought down. So I will write here to balance brought down. तो मुझे बताओ, who are our debtor? Debtor are our customers whom we have sold goods on credit. Debtor are our customers whom we have sold goods on credit. Sold goods on credit, not credit side. Sold goods on credit. Credit means उधार पे इनको हमने goods sell किया है. We will get our money on future. मतलब इनको हम credit में sales करते हैं. Credit
सेल्स। तो ये डेटर अकाउंट से हमें दो चीजें समझ में आ सकती है। डेटर अकाउंट से हमें दो चीजें समझ में आती है। डेटर अकाउंट से हमें क्या दो चीज फाइनल अकाउंट के लिए हम पता लगा सकते। एक तो क्रेडिट सेल्स और दूसरा हमें मिलता है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस जो कि हम असेट साइड में लिखेंगे। ये जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हमें सेल्स चाहिए। क्रेडिट सेल्स हमें डेटर में से मिलेगा एंड हमें डेटर का बैलेंस चाहिए जो कि हम बैलेंस शीट असेट साइड में लिखेंगे। ये दोनों में से अगर कोई चीज नहीं दिया तो हमें ये डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वी विल हैव टू प्रिपेयर दिस डेटर अकाउंट। नाउ टेल मी व्हेन विल द डेटर इंक्रीज। डेटर कब इंक्रीज होगा? व्हेन विल द डेटर इंक्रीज? डेटर इंक्रीज कब होगा? डेटर विल इंक्रीज when we will sell। जब हम सेल करेंगे, क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेटर इंक्रीज होगा। when we will sell on credit, our debtor will increase। डेटर विल इंक्रीज। सो यहाँ पे लिखेंगे डेटर डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज होगा तो भी डेबिट में लिखेंगे। बट इंक्रीज कब होता है? when we do a credit sales। तो क्रेडिट सेल जब करेंगे डेटर इंक्रीज होगा। जब हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेटर इंक्रीज आर डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि डेटर भी डेबिट है। तो डेटर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डेटर कम होगा तो क्रेडिट। समझ में आया? जब डेटर इंक्रीज होगा तो हम डेबिट में लिखेंगे और डेटर कम होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। डेटर कम होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो टेल मी डेटर कम कब होगा? डेटर कब इंक्रीज होगा? जब क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेबिट में लिखा। डेटर कम कब होगा? when the debtor will reduce, when we will get the payment from the debtors। जब हमें डेटर से पैसा मिलेगा तब डेटर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश बैंक। ये क्या है? दिस इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से जब पैसा मिलेगा that time debtor will reduce, means when we will get the payment from the debtor, when we will get the money from the debtor, debtor will decrease। collection from debtors, debtor कम होगा तो क्रेडिट साइड में लिखा। डेटर कम होगा तो क्रेडिट साइड में लिखा। अब एक और तरीके में डेटर कम होता है। कब कम होता है? जब डेटर्स को हम बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट करते हैं। when debtors are converted into bills receivable, means यहाँ पे I can write bills drawn। what is bills receivable? Bills receivable are the document where debtor signs and gives a date, exact date when he will pay the money, he or she will make the payment। so डेटर्स को ही हम, डेटर में से ही कुछ डेटर्स को हम बिल्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि हमें साइन करके लिख के दे गिव दैट एग्जैक्टली विच डेट दे विल मेक अ पेमेंट। देन डेटर तो कभी भी पे कर सकता है। उसने वो सिर्फ मुंह में बोलता है इतने दिन में पे करेगा, बट कोई लीगल उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अगर वो बिल्स रिसीवेबल साइन करके देगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इफ ही साइंस एंड गिव्स, देन इट बिकम्स अ ऑब्लिगेशन ऑन हिम बिकॉज बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। उसमें साइन करके देता है तो उसके ऊपर एक और कंपल्शन आ जाता है कि जिस डेट में उसने लिखा है। अब हमें
एग्जैक्ट मोर क्लैरिटी मिल जाता है कि कौन से डेट में हमने हमारा पैसा मिलेगा. देन जब बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा डेटर, सो डेटर कम होके बिल रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा. करेक्ट. डेटर कम होके बिल्स रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा. एंड एक और चीज, डेटर फिर कैसे कम होगा? जब डेटर्स को हम डिस्काउंट देंगे, व्हेन डेटर को हम डिस्काउंट देंगे तो डेटर कम हो जाएगा. फिर डेटर कब कम होगा? जब बैड डेट्स होगा. व्हाट इज बैड डेट्स? बैड डेट्स क्या है? Bad debts is when a debtor is not able to, we know कि ये पैसा नहीं मिलने वाला. डेटर को जब हमने डेटर से जब हमें पता चलता है कि नहीं ये पैसा अब नहीं मिलने वाला है, देन दैट आर डेट्स इररिकवरेबल. हमने जिनको उधार में सेल किया हमारे डेटर्स, उनसे पैसा नहीं मिलने वाला है, देन दैट बिकम्स अ बैड डेट्स. सो बैड डेट से भी हमारा डेटर कम होता है. व्हेन वी गिव डिस्काउंट टू डेटर, देन ऑल्सो डेटर बिकम्स लेस. डेटर कम होगा तो क्रेडिट में लिखना, डेटर ज्यादा होगा तो डेबिट में लिखना. एक और तरीका है जब डेटर कम होता है, दैट इज सेल्स रिटर्न. जब हमने डेटर को सेल किया, when we have sold the goods to our debtor and वो डेटर को पसंद नहीं आया, हमारे कस्टमर को वो गुड्स पसंद नहीं आया, तो वो क्या करेगा? गुड्स को वापस करेगा. और जो गुड्स को वो वापस करेगा, क्या उसका भी पैसा वो देगा? The goods which are returned from the customers, will the debtor pay for those goods? Goods which are returned from the customers, for that goods customer will not make any payment, so debtor का amount भी कम हो जाएगा sales return में. करेक्ट. सो ये है. अभी एक और चीज है यहाँ पे मुझे लिखना है, डेटर कब इंक्रीज होता है? जब हमारा बिल्स रिसीवेबल ड्यू डेट में बिल्स का पैसा आना चाहिए. अगर पैसा नहीं आया तो क्या बोलते हैं हम उसको? बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ है? बिल्स रिसीवेबल्स डिसऑनर्ड. जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है, डिसऑनर मतलब ड्यू डेट में पैसा नहीं मिला, ड्यू डेट में we are not getting money from the bill, then the debtor which was converted into bill, again it becomes our debtor. पैसा छोड़ नहीं सकते, bills get cancelled, तो then the बिल जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ था वो हमारा डेटर है, तो डेटर का अमाउंट इंक्रीज होगा. व्हेन बिल्स गेट डिसऑनर्ड, डेटर गेट्स इंक्रीज्ड. करेक्ट. बिल डिसऑनर हुआ तो डेटर गेट्स इंक्रीज. मतलब बिल का पैसा नहीं मिला तो क्या हम पैसा भूल जाएंगे? नहीं. वी वॉन्ट अवर मनी, बट देन दैट मनी इज, देन दैट पर्सन इज अवर डेटर. उससे हम बाद में पैसा लेंगे तो डेटर विल इंक्रीज. बिल्स विल डिसऑनर तो डेटर विल इंक्रीज. बिल जब ड्रॉ होगा तो डेटर कम हो जाएगा. बिल जब ड्रॉ होगा तो डेटर कम हो जाएगा. बिल जब डिसऑनर होगा तो डेटर इंक्रीज होगा. डेटर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट. नाउ विद दिस, एक और तरीके से डेटर इंक्रीज हो सकता है. यहाँ पे हम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स. ये क्या है? दिस इज एंडोर्स्ड बिल. एंडोर्स्ड बिल dishonored. What is endorsed bill? Do you know what is a endorsed bill? Means suppose I want to pay money to my creditor. Yes, third person, my creditor. I need to make a payment to him, but what I do?
when I want to make a payment to him but I have a bill, मेरे पास एक बिल है, मैं बोलती हूँ कि ये बिल पे मुझे बाद में पैसा मिलने वाला है। ये बिल किसका है? ये बिल मेरे डेटर का है, जिसने मुझे लिख के दिया है कि वो मुझे कौन से डेट में पैसा देने वाला है। तो मैं मेरे क्रेडिटर को वो बिल देती हूँ कि ये डेट में आपको ये पैसा मिल जाएगा। बट ऑन द ड्यू डेट इफ दैट बिल डिसऑनर्स, देन हमारा डेटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा ना। मींस बिल का पैसा नहीं मिला तो हम वो पैसे को तो नहीं छोड़ सकते, तो डेटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन एंडोर्स बिल आल्सो गेट्स डिसऑनर्ड, नॉर्मल बिल गेट डिसऑनर्ड और एंडोर्स बिल गेट डिसऑनर्ड, इन बोथ द केसेस डेटर्स विल इंक्रीज। क्योंकि ये बिल क्रिएट कैसे हुआ था? जब हमने डेटर को कन्वर्ट किया था बिल में। So this situation also, what will happen? Debtor will increase. अगर हमें डेटर से पैसा मिला था, फॉर एग्जाम्पल हमें डेटर से चेक मिला और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो हम क्या पैसा नहीं लेंगे हमारे डेटर से? इफ अ चेक हैज डिसऑनर्ड, डेटर ने हमें क्या किया? क्रॉस चेक डेटर हैड गिवन, डेटर ने हमें चेक दिया था, चेक पेमेंट, और फिर 48 आवर्स बाद पता चला कि वो चेक तो डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो अगेन डेटर विल इंक्रीज। यहाँ पे हमने बोला डेटर से पैसा मिला, बट इट वॉज अ चेक पेमेंट, लेटर वी अंडरस्टूड दैट द चेक गॉट डिसऑनर्ड, तो ऐसे सिचुएशन में भी डेटर विल इंक्रीज। करेक्ट, बिकॉज हम इसको पेमेंट नहीं मानेंगे, बिकॉज हमें हमारा पैसा नहीं मिला है। सो दैट सिचुएशन ऑल्सो डेटर विल इंक्रीज। नाउ वी विल क्लोज द डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट को क्लोज करेंगे, विल क्लोज अवर डेटर अकाउंट एंड यहाँ पे हमें बैलेंस मिलेगा, बैलेंस carried down. This is that closing balance which will come in the asset side. ये कहाँ पे आएगा? asset side में आएगा डेटर बोल के, और ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट सेल। दिस विल कम इन आवर ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट सेल। This will come in our trading account, sales, credit sales. So इसलिए ये दो डेटर अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड क्रेडिट सेल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस। दोनों में से एक ही फाइंड करने के लिए होगा, या तो क्रेडिट सेल्स या तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, या तो कभी कभी वी विल हैव टू प्रिपेयर द डेटर अकाउंट टू फाइंड आउट द कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना पैसा मिला वो फाइंड आउट करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेडिट सेल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। नाउ सेम वे we have bills receivable. Now tell me, bill receivable is a asset or a liability? bill receivable क्या है? asset है या liability है? what is bill receivable? asset or a liability? It's a asset. Asset means again it will have a debit balance, to balance brought down, to balance brought down, correct? To balance brought down. Now tell me, when will the bills receivable increase? bill receivable कब increase होगा? जब डेटर से बिल में कन्वर्ट, डेटर बिल में कन्वर्ट होगा, दैट टाइम बिल्स रिसीवेबल विल इंक्रीज, बिल्स ड्रॉन, व्हेन बिल्स विल बी ड्रॉन बिल्स रिसीवेबल विल इंक्रीज, करेक्ट? बिल रिसीवेबल कब इंक्रीज होगा? जब बिल्स ड्रॉ होगा, डेटर कम हो जाता है एंड बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल कब इंक्रीज होगा? व्हेन बिल्स विल बी ड्रॉन। एंड कम कब होगा?
जब पेमेंट आएगा बिल्स में, व्हेन बिल्स में से पेमेंट आएगा, दैट इज हॉनरिंग ऑफ द बिल. वन मोर थिंग, कब पैसा, कब बिल्स रिसीवेबल कम होगा, एक और सिचुएशन में भी कम होगा, डेटर में क्रिएट हो जाएगा बिल्स व्हेन देयर इज अ डिसऑनरिंग ऑफ द बिल. डिसऑनरिंग, जब बिल का डिसऑनरिंग होगा तभी भी कम होगा बिल्स रिसीवेबल. हॉनरिंग होगा, ड्यू डेट में दो चीज हो सकता है, या तो बिल्स विल बी हॉनर्ड, then in that case also bills will reduce, या तो bills will be dishonored, in that case also bills will reduce, because bill का डेट उसके ड्यू, बिल का लाइफ उसके ड्यू डेट तक ही है. बिल का लाइफ कब तक है, जब तक के लिए वो क्रिएट हुआ. उसके बाद दोनों सिचुएशन में, ऑनरिंग ऑल्सो इट गेट कैंसल, डिसऑनरिंग ऑल्सो इट गेट कैंसल. ड्यू डेट के बाद बिल गेट cancelled, whether irrespective of it getting honored or dishonored, bill get cancelled, right? तो ये सिचुएशन में, और सी हियर बाय, तो इसको बंद करेंगे, we will close it and यहाँ पे we will write, क्या रहेगा, बाय बैलेंस carried down, by balance carried down. This was our bills receivable debtor and bills receivable account, debtor and bills receivable account, debtor and bills receivable account. So remaining what we have to also understand creditor and bills payable account. So let us say, tell me creditor क्या है, asset है या liability है? creditor क्या है, liability है. liability has credit balance, by balance brought down, by balance brought down. अब क्रेडिटर कब इंक्रीज होगा, जब हम क्रेडिट में परचेस करेंगे. क्रेडिटर कब इंक्रीज होगा, जब हम क्रेडिटर में परचेस, क्रेडिट में परचेस करेंगे. हु इज अवर क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अवर सप्लायर. क्रेडिटर कौन है, हमारा सप्लायर्स. क्रेडिटर्स आर अवर सप्लायर्स. देन हु आर अवर डेटर, डेटर आर अवर कस्टमर. सिंपल लैंग्वेज में डेटर कस्टमर, क्रेडिटर सप्लायर. So now how will the creditor decrease, कम कब होगा, जब हम लोग पैसा पे करेंगे क्रेडिटर को, that is payment to creditor, payment to creditors. क्रेडिटर्स को पे करेंगे, क्रेडिटर को पे करेंगे तो क्रेडिटर will decrease. और कब डिक्रीज होगा, और कब डिक्रीज होगा, when creditor will be converted into bills payable. कि कौन से डेट में पैसा देने वाले, बिल्स एक्सेप्टेड, कि हम ये डेट में पैसा पे करेंगे, राइट. फिर जब क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देता है तभी भी हमारा क्रेडिटर कम होता है, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है. फिर जब हम परचेस रिटर्न करते हैं, when we return right,
जब रिटर्न करते हैं, when we return our goods, तभी भी एक और चीज, हमारा क्रेडिटर जब भी कम होता है, एक और तरीका जब हमारा क्रेडिटर कम होता है वो क्या है, टू बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड। क्रेडिटर एक और चीज में कम होता है, कभी मेरे पास पैसा नहीं है बट मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मेरे पास क्या है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिससे मुझे फ्यूचर में पैसा आने वाला है, तो वो जब मैं मेरे क्रेडिटर को दूंगी तो मेरा क्रेडिटर कम हो जाएगा। जब मैं मेरे क्रेडिटर को, मेरे सप्लायर को मुझे मिलने वाला पैसे का बिल, आई विल hand over him the bills of exchange from where I am going to get the money in the future, so my creditor will increase, करेक्ट। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल में एक और चीज यहाँ पे आ सकता है, बाय क्रेडिटर्स। बिल कब कम होता है, जब क्रेडिटर को हम एंडोर्स बिल देते हैं, राइट। क्रेडिटर को जब हम बिल एंडोर्स करते हैं तब। तो इधर लिखा हमने टू बिल्स रिसीवेबल, कम हो गया एंडोर्स बिल, राइट। हमारा क्रेडिटर कब कम हो रहा है, जब हमने बिल्स रिसीवेबल दिया, ये एंडोर्स बिल है, इससे मुझे पैसे आने वाला था किसी और से, वो बिल मैंने मेरे क्रेडिटर को दे दिया तो क्रेडिटर कम हुआ। अब क्रेडिटर ज्यादा कब होगा, बाय बिल्स पेएबल। व्हाट इज दिस, दिस इज डिसऑनर, दिस इज डिसऑनर्ड। बिल्स पेएबल क्या हो गया, ड्यू डेट में हमने पैसा नहीं दिया, तो ये सिचुएशन में। और एक सिचुएशन में भी हमने जो बैंक पेमेंट किया चेक से, वो डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर हुआ, देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन, क्रेडिटर विल इंक्रीज। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया बट चेक गॉट डिसऑनर्ड, सो क्रेडिटर विल इंक्रीज। एंड यहाँ पे लिखेंगे बाय डेटर्स, ये क्या है, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। जब एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो हम क्या लिखेंगे, डेटर का नाम लिखेंगे, बिकॉज हम बिल को नहीं, हम डेटर को जानते हैं, राइट। तो उधर हमने लिखा बाय डेटर, डेटर को नहीं जानते हम क्या करते, यहाँ पे बाय डेटर क्यों लिखा, क्योंकि हमने वो सोचा था ये डेटर का पैसा हमने इसको दिया, डेटर से हमें पैसा मिलने वाला था, हमने वो क्रेडिटर को दिया, बट दैट गॉट डिसऑनर्ड, सो एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। नाउ वी कैन क्लोज दिस अकाउंट। क्या देखेंगे हम, क्रेडिट हैवी रहेगा, क्रेडिट साइड हैवी है, तो यहाँ पे देयर विल कम द closing balance. Closing balance will always be on the opposite side, means अगर asset है तो क्रेडिट साइड में रहेगा क्लोजिंग बैलेंस, ये लाइबिलिटी है इसलिए देयर इज अ डेबिट साइड में बैलेंस है, which actually means a credit balance. Closing balance is always shown on the opposite side, right? So इसके बाद we have last account which we will learn, that is bills payable. Tell me क्या है asset, ये क्या है, asset है या liability? Liability means credit balance, by balance brought down. Now ये increase कब होता है, increase होता है जब creditors are converted into bills payable, accepted ना, bills payable accepted.
bills payable accepted. और ये कम कब होता है? कम कब होता है? जब पैसा मिल जाता है. ऑनर्ड, ऑनरिंग ऑफ द बिल. कभी भी कम होता है और दूसरे सिचुएशन में भी कम होता है. दैट इज टू क्रेडिटर्स डिसऑनर्ड. दोनों सिचुएशन में कम होता है बिकॉज बिल का लाइफ, उसके ड्यू डेट, बिल का जो लाइफ है ड्यू डेट तक ही रहता है. तो इसको बंद करो. क्लोज इट. दिस विल बी हैवी, दिस साइड विल बी हैवी. तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन. टू बैलेंस कैरीड डाउन and here. So with this, bills payable is also done. This 4 accounts we have seen. So next lecture, what we will do? Next lecture we will do with the next sums. With this, I will end today's lecture. Thank you very much, everyone.